Hello to everyone, welcome to my channel. In previous lecture, I did explain in the polynomial many things. First, what is term, what is variable number, what is non-variable number, how many types of term, on the behalf of term, what is the polynomial, and what is the polynomial, how we can identify any polynomial, and what is algebraic expression. Except this, today I am going to discuss in this topic what is coefficient, what is the degree of any polynomial, on the behalf of degree how many types of polynomial. Except this, I will explain also here how we can find the value at any polynomial at any point, and what is the zeros or root of any polynomial. First thing, start with coefficient. In simple term, in simple language, I did written here which numeric value attached with any variable number, that is called coefficient of that variable. That means I did written an example of any algebraic expression, that is the x to the power 4 minus 3x cube plus 2x square minus 5x plus 6. In this question, you cannot say anything directly that this is the coefficient of this algebraic expression, because I did say that any numeric value attached with any variable number, that means in polynomial, if you are seeing that many variable numbers, that means many coefficient also present there. So first thing, here we are seeing that what is the variable numbers in this algebraic expression. First is the variable number is x to the power 4. Second is the variable number is x to the power 3. Third is the variable number x to the power 2. And last but not least, it is the variable number x. That means I can written here coefficient of x separately, coefficient of x square separately, coefficient of x to the power 3 separately, and coefficient of x to the power 4 separately as well as. So, if I want to write here what is the coefficient of x, then just you are seeing that where variable number x is present, you are clearly seeing that variable number x is present here. And I did say that which numeric value attached with any variable number, that is the coefficient of that polynomial. That means here you are seeing that 5 is attached with the variable number of x, and we will go always with sign even positive or even negative. That means -5 is the numeric value attached with x. ठीक है, थोड़ा इंग्लिश में भी समझ लेते हैं क्या मैंने कहा। जो भी न्यूमेरिक वैल्यू अटैच होगी किसी वेरिएबल नंबर के साथ, वही उस कोफिशिएंट उस वेरिएबल नंबर की कोफिशिएंट होगी। ये वेरिएबल नंबर है, ठीक है। अगर मैं कहूं इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डायरेक्ट आप मुझे बता दो, कोफिशिएंट नहीं बता पाओगे। बट अगर मैंने कह दिया कि x का कोफिशिएंट बता दो, x स्क्वायर का कोफिशिएंट बता दो, x टू द पावर 3 का बता दो, x टू द पावर 4 का बता दो, इजीली बता दोगे। कैसे? x कहां है, देखा मैंने यहाँ पे है। x का साथ जो भी न्यूमेरिक वैल्यू अटैच है यानी -5, दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ this variable number. That means we can write here coefficient of x is the -5. Next question is coefficient of x square. We are seeing that x to the power 2 this, and plus 2 is attached with this variable number. That means coefficient of x square is the +2. That means 2. And next coefficient of x to the power 3. Here we are seeing that coefficient of x to the power 3 variable number present here, and -3 is the numeric value attached with x to the power 3. That means coefficient of x cube we can written here -3. क्लियर है? मैंने क्या कहा, x to the power 2 के साथ जो भी न्यूमेरिक वैल्यू अटैच है, यहाँ पे +2 अटैच था, मैंने लिख दिया सिंपल 2 कोफिशिएंट होगा। x to the power 3 के साथ जो भी अटैच होगा वो उसका कोफिशिएंट यानी -3 उसका कोफिशिएंट होगा, बात खत्म। अब नेक्स्ट है x to the power 4। बेटा देख यहाँ पे ध्यान से, कोफिशिएंट ऑफ x to the power 4 मेरे को पूछ रहा है, और मैंने कहा न्यूमेरिक वैल्यू जो भी अटैच होगी, बेटा देख आगे कुछ नहीं लिखा है, लेकिन मैं 1 लिख सकता हूं ना, क्योंकि 1 से किसी में मल्टीप्लाई करते हैं वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होती। इफ आई विल मल्टीप्लाई 1 in the any number, then value will not change. That means we can write here coefficient of x to the power 4, that is the 1। क्लियर है? तो कोफिशिएंट ऑफ x to the power 4 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में बेटा ऐसे आएगा कि एक एक्सप्रेशन देगा और आपको पूछ लेगा इसके कोफिशिएंट बताओ, इसके कोफिशिएंट बताओ, इसके कोफिशिएंट बताओ, इसके कोफिशिएंट बताओ, इजीली देख के बता देना। जो भी न्यूमेरिक वैल्यू अटैच वही उसका कोफिशिएंट, बात खत्म। समझ गए? बात क्लियर है? इसके अलावा अभी आगे हम डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ एनी पॉलिनोमियल। तो जस्ट रिटन राइट, नोट करो इसको, फिर आगे बढ़ो। हाउ वी कैन डिनोट द एनी पॉलिनोमियल। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, कोफिशिएंट हमने देख लिया, ठीक। कोफिशिएंट कैसे होता है, किस वेरिएबल का कोफिशिएंट कैसे निकालना है जान गए। अब किसी भी पॉलिनोमियल को हम डिनोट कैसे करते हैं, कैसे दिखाएंगे उस किसी पॉलिनोमियल को, बहुत सिंपल है। मैं लिख रहा हूं एक लाइन, जस्ट लिखना, इफ एनी पॉलिनोमियल, इफ एनी
polynomial, if any polynomial is variable in x, is variable in x, then we can denote this polynomial, we can denote this polynomial as p of x. Same like variable in y, then denote as py, like pz एक्सेट्रा। क्या मतलब है? कोई भी पॉलिनोमियल आपके सामने आ जाए, ठीक, जैसे मैं कोई पॉलिनोमियल एक एग्जांपल दे दूं, लाइक कि 5x² प्लस 3x माइनस 2, दिस इज द पॉलिनोमियल, एंड सेकेंड दे दूं एग्जांपल कि 9y² माइनस 3y प्लस 2, और मुझे इसको डिनोट करना है। क्या करना है? डिनोट करना है। मैंने सिंपल कहा इफ एनी पॉलिनोमियल इज वेरिएबल इन x, कोई भी पॉलिनोमियल अगर वेरिएबल उसका x है तो उसको तुम डिनोट कर सकते हो p ऑफ x से, p ऑफ x से। अगर इसको लिख दिए तुमने तो जो भी आपके सामने है वो समझ जाएगा कि ये पॉलिनोमियल वेरिएबल ऑफ x के फॉर्म में है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ इसको p ऑफ x इक्वल 5x² प्लस 3x माइनस 2, एंड सेम लाइक if a variable in the y, then we can write as p of y is equal to 9y² minus 3y plus 2, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालना है डिग्री द पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। बहुत इजी टॉपिक है ये, कुछ खास नहीं है। किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? एक लाइन में बता रहा हूं आपको, सिंपल लिखना, हाईएस्ट डिग्री of the variable x in given polynomial is called the degree of that polynomial, क्या मतलब है इसका? कोई भी पॉलिनोमियल तुम्हारे सामने आ जाए, उसमें जो भी वेरिएबल है, लाइक वेरिएबल x है, उसकी हाईएस्ट डिग्री जो भी होगी वही उस पॉलिनोमियल का क्या होगा? डिग्री होगा। वही उस पॉलिनोमियल का क्या होगा? डिग्री होगा। लाइक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल हमारे पास आ जाए 7x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x माइनस 8। अब बेटा पॉलिनोमियल की बात हो रही है तो ये तो नहीं होगा कि पावर हर जगह 2 ही दिखे, पावर 4 भी हो सकता है, पावर 6 भी हो सकता है। मैंने समझा दिया है कि ऐसा कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी पावर 1 हो या 1, पहला तो मैंने डिफिनेशन ये दिया था जिसमें 1 या मोर देन 1 टर्म हो, दैट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। दूसरा डिफिनेशन ये दिया था कि कोई भी पॉलिनोमियल अगर तभी होगा जब उसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर होगी, वेरिएबल की पावर होल नंबर होगी, यही बताया था। दो तरीके। तो पहला एग्जांपल ये है हमारे पास। दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूं लाइक 5x3 माइनस 2x। तीसरा एग्जांपल लेता हूं 7x की पावर 5 माइनस 5x प्लस 8। चौथा एग्जांपल लेता हूं 8 और पांचवा एग्जांपल लिखता हूं 0। इन सब से मैं तुमको सारा चीज यहीं पे क्लियर कर दूंगा। पहला चीज देखो, मैंने क्या कहा कि जो भी पॉलिनोमियल है उसमें जो भी वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट डिग्री इज द डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। ये हमारा पॉलिनोमियल है यहाँ पे, ठीक है। दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल in which you are seeing that here x to the power 4 and here x to the power 3, here x to the power 1. What is the highest degree in this? In the variable x? 4. 4 is the highest degree in these. Here 4, here 3, here 1, and 4 is the greatest number. That means we can say that degree of this polynomial is 4। कितना हो जाएगा? 4। जो भी हाईएस्ट डिग्री होगी वही उसका पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। अच्छा, यहां पे अगर मेरे को पूछे कि इसका डिग्री बताओ जरा, क्या होगा? डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल क्या होगा? 3 होगा, क्योंकि देख रहे हो क्लियरली दिख रहा है
कि वेरिएबल x है, यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे पावर 1 है, तो जो भी हाईएस्ट डिग्री है वही इस पॉलिनोमियल की डिग्री है। अच्छा इस पे आ जाओ, यहाँ पे पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? डिग्री क्या होगी? डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल 5 होगी, क्योंकि वेरिएबल x है और x की हाईएस्ट पावर 5 है। अच्छा यहाँ पे आ जाओ, एक तो 8 है, दूसरा 0, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। और जो चीज पूछ लिया जाता है कभी कभी एक नंबर के क्वेश्चन में, 8 में क्या होगा डिग्री और 0 में क्या होगा डिग्री, बताना जरा। व्हाट इज द डिग्री ऑफ 8? 0 में इनफाइनाइट। अच्छा चलो मैं समझाता हूं, ऊपर का मिटा रहा हूं फिर आपको समझाता हूं क्या है। मैंने क्या कहा कि कोई भी पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की पावर हाईएस्ट डिग्री होगी वही उस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। अच्छा दूसरी चीज मैंने समझाया था पॉलिनोमियल होता क्या है। पहले तो ये देखो, क्या 8 पॉलिनोमियल होगा? क्या 0 पॉलिनोमियल होगा? क्यों नहीं होगा जी? नंबर है ना। और मैंने क्या डिफिनीशन दिया था? डिफिनीशन याद है? क्या डिफिनीशन थी पॉलिनोमियल की? यहीं पे कंफ्यूज हो गए कि 8 पॉलिनोमियल है या 0 पॉलिनोमियल है, क्या यहीं पे कंफ्यूजन आ गया। लो मैंने समझाया था कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक या एक से ज्यादा टर्म हो वो पॉलिनोमियल है। एक टर्म है क्या? वन टर्म है क्या? 8 भी तो टर्म ही है, मैंने समझाया नहीं तो स्टार्टिंग में, मोनोमियल है ना ये। 8 एक टर्म है, 0 एक टर्म है ना। इस हिसाब से पॉलिनोमियल हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। दूसरा डिफिनेशन पे आ जाओ, दूसरा भी वेरीफाई करा देता हूं, डोंट वरी। दूसरा डिफिनेशन क्या था? कोई भी पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर होगा वो पॉलिनोमियल होगा। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर होगा वो पॉलिनोमियल होगा। समझाया था। All the algebraic expression which have whole number as the exponents of the variable that is called the polynomial. क्लियर? 8 को क्या मैं लिख सकता हूं? 8 इंटू एक्स की पावर 0 लिख सकता हूं क्या? कोई चेंजिंग आएगी क्या? कोई चेंजिंग आएगी क्या? एक्स की पावर मैंने 0 कर दिया और किसी की पावर 0 होता है यानी वैल्यू उसकी 1 होती है, यानी ये 8 ही है और मैंने इसमें लगा दिया एक्स की पावर 0। पहला वेरीफाई मैंने वहां से कराया कि एक टर्म था तो पॉलिनोमियल था, दूसरा वेरिफिकेशन यहां से कर लो। अब यहाँ पे वेरिएबल एक्स है और इसकी पावर होल नंबर है क्या? 0 होल नंबर होता है ना, होता है। इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल है। क्या है ये? पॉलिनोमियल। अच्छा डिग्री क्या होगी इसकी? डिग्री बताना जरा, इसकी डिग्री क्या होगी? डिग्री क्या होगी? डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल 0 होगी। क्या होगी? 0। क्लियर? क्लियर ना। जो पावर है वही तो होगा, और पावर तुमने क्या कहा? 1 होगा डिग्री। अगर 1 में रख दूंगा तो 8x नहीं बन जाएगा? वैल्यू तो बदल जाएगी ना, यहाँ तो वैल्यू नहीं चेंज है। इसका मतलब 8 की डिग्री कितनी है? 0। अच्छा दूसरा एग्जांपल मैं ले दूं, 99, इसका क्या होगा डिग्री? क्या हुआ? दूसरा एग्जांपल क्या लिया मैंने? 99, 99 की डिग्री क्या होगी? 1 पे जा रहे हो? हाँ 1 क्यों होगा भाई मेरे? 1 क्यों होगा? अगर इसके पावर, डिग्री की बात कर रहा हूं ना, डिग्री क्या होगी? डिग्री क्या होती है? वेरिएबल की पावर देखते हैं ना, डिग्री क्या होती है? वही तो वेरिएबल की जो पावर लगी है। वेरिएबल तो अभी है ही नहीं। वेरिएबल में कुछ भी मान लूं, मुझे शौक लगाए यहाँ मैं एक्स माना हूं, यहाँ मैं जेड मानूंगा, तो मुझे तो डिग्री 0 ही चढ़ानी पड़ेगी, तभी तो वैल्यू चेंज नहीं होगी। जैसे जेड की पावर 1 कर दूंगा, सपोज दैट जेड की पावर 1, जेड की पावर 2, तो इसकी तो वैल्यू 99 जेड हो गई, इसकी वैल्यू 99 जेड स्क्वायर हो गई, लेकिन इसकी वैल्यू 99 ही है ना? है कि नहीं है? इसका मतलब ये अगर मैं 1 2 कर दूंगा वैल्यू बदल जाएगी, बट जब 0 रहेगा तो वैल्यू सेम है ना? इसका मतलब डिग्री क्या होगा? 0 होगा। यहां भी डिग्री 0 होगा। डिग्री क्या होगी इसकी? 0 होगी। अब समझो जो मैं समझाना चाहता हूं। 8 कांस्टेंट है, 99 कांस्टेंट है क्या? अगर इसको मैं कितना भी बड़ा नंबर लिख दूं, कोई नंबर लिख दूं मैं 104738 बिना देखे कुछ भी लिख दूं, और मैं फिर इसको देके पूछूं कि डिग्री क्या होगी? डिग्री हमेशा 0 होगी किसी भी कांस्टेंट टर्म का। क्लियर हुआ? तो मैं सिंपल लिखूंगा डिग्री ऑफ द कांस्टेंट टर्म, डिग्री ऑफ द कांस्टेंट टर्म
is always will be 0, is always will be 0। कोई समस्या यहाँ पे? इसको याद भी कर रहना और दिमाग में हमेशा बिठा के रखना, ठीक। अच्छा, दूसरा एग्जांपल क्या मैंने दिया था? अगला एग्जांपल 0 का क्या दिया था? इसका मैंने पूछा था तुमसे डिग्री बताने को। क्लियर है? क्लियर है? अब 0 को समझो, क्या होगा इसका डिग्री? बता सकता है कोई? क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। क्यों? क्योंकि मैं इसको लिख सकता हूं 0 इंटू एक्स की पावर 0, लिख सकता हूं ना। किसी की पावर 0 1 होता है, वैल्यू पता है। एक्स की पावर 0 मतलब 1, यानी इसकी मतलब हो जाएगा 0 इंटू 1 दैट इज इक्वल 0 होगा। और अगर मैं इसको लिख दूं 0 इंटू एक्स की पावर 1, कोई वैल्यू में चेंज आएगा? फिर भी तो 0 है। 0 में तुम किसी का गुणा कर दो, किसी से मल्टीप्लाई कर दो, 0 ही तो आएगा। मैं कुछ भी लिख दूं यहाँ पे 0 इंटू एक्स की पावर 1 3 4 7 8, कितना भी बड़ा मैं पावर चढ़ा दूं, फिर भी 0 से अंत में गुणा होकर 0 बना देगा। बना देगा कि नहीं बना देगा? यानी कि 0 की कोई भी डिग्री फिक्स नहीं है, चाहे मैं 0 रखूं, चाहे 1 रखूं, 2 रखूं, कुछ भी रखूं, दुनिया का कोई भी नंबर रखूं, हर जगह पे इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? डिग्री फिक्स नहीं है, डिग्री फिक्स नहीं है। तो मैं लिखूंगा डिग्री ऑफ द 0, डिग्री ऑफ द 0 इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइन आर इनफाइनाइट, नॉट डिफाइन आर इनफाइनाइट, कुछ भी हो सकता है। बात समझ में आई? यही तुम पूछ रहे थे। क्लियर हुआ डिग्री का सारा सवाल? नोट कर लो फटाफट, फिर आगे। हमने पढ़ लिया डिग्री, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा था स्टार्टिंग में? याद करो, पहले टर्म पढ़ा, कितने टाइप की टर्म होती हैं वो पढ़ा, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रेटिक, ये सारे पढ़े, ठीक। उसके बाद पॉलिनोमियल को अच्छे से डिफाइन किया, पहचानना सीखा, ठीक। उसके बाद में क्या पढ़ा हमने? कैसे डिनोट करते हैं, फिर अभी डिग्री भी पढ़ लिया। अब जो पॉलिनोमियल का जो टाइप होता है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल को हमेशा दो टाइप से डिफाइन करते हैं, मतलब कि दो टाइप से बताते हैं कि कितने टाइप के पॉलिनोमियल होंगे। पहला जो टाइप था वो तुमने पढ़ा ऑन द बिहाफ ऑफ टर्म, क्योंकि मैंने पॉलिनोमियल में एक डिफिनेशन दी थी कि जिसमें 1 या 1 से ज्यादा टर्म होंगे वो सारे पॉलिनोमियल हैं। यानी कि मोनोमियल भी पॉलिनोमियल है, बाइनोमियल भी पॉलिनोमियल है, ट्राइनोमियल भी पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल तो खुद है ही, ठीक है। समझ गए? तो पहला जो डिफिनीशन था, पहला जो टाइप्स था वो था ऑन द बिहाफ ऑफ टर्म, ऑन द बिहाफ ऑफ टर्म या ऑन द बेस ऑफ टर्म, ठीक। इसके बिहाफ पे हमने टाइप्स पढ़ लिए पॉलिनोमियल के। और दूसरा जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो होगा ऑन द बेस ऑफ डिग्री, ऑन द बेस ऑफ डिग्री, कि डिग्री के बिहाफ पे कितने टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर है? तो जो डिग्री के बिहाफ पे टाइप होते हैं पॉलिनोमियल के, 2-3 टाइप पढ़ेंगे, ज्यादा पढ़ने की नीड नहीं है। पहला टाइप हम पढ़ लेते हैं, दैट इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल, दैट इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। एंड सेकेंड वन पढ़ लेंगे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक। एंड नेक्स्ट एक देख लेंगे थोड़ा सा और बढ़ के, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब बेटा तुम किताब में देखे होगे कि पॉलिनोमियल के बाद जो अगला चैप्टर है वो है लीनियर पॉलिनोमियल इन टू इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, है ना। जो इक्वेशन बनता है ना, इक्वेशन बनता है पॉलिनोमियल से ही, बाद में बताएंगे क्या डिफरेंस होता है पॉलिनोमियल में और इक्वेशन में। तो बेसिकली जो लीनियर पॉलिनोमियल है इससे बना है तुम्हारा अगला टॉपिक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और उसका अगला टॉपिक जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उससे बना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर हुआ? क्यूबिक पॉलिनोमियल जो है ये तुम्हारे बुक में नहीं है, ये तुम्हें अभी नहीं पढ़ना है। कुछ बुक में दिया है आर.एस. अग्रवाल वगैरह में, बट इससे क्वेश्चन तुम्हें आने नहीं है 10th क्लास में, तो इसको पढ़ने की नीड नहीं है, बस थोड़ा सा समझ लेंगे बेसिकली होता क्या है, इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि जिसमें मैक्सिमम डिग्री पॉलिनोमियल की कितनी हो? 1। डिग्री के बिहाफ पे कर रहे हैं ना कंपैरिजन। तो जो लीनियर पॉलिनोमियल होगा इसमें लिखेंगे हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 1, ऑफ द पॉलिनोमियल इज 1। कोई भी ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 है, दैट विल बी अंडर कैटेगरी ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर? एंड सेकेंड क्वाड्रेटिक में क्या होगा? व्हिच है हाईएस्ट डिग्री
हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2, ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2, ठीक है। एंड क्यूबिक का साथ में देख लेते हैं। क्यूब, क्यूब कैसे होता है, पावर 3 होता है ना क्यूब में। क्वाड्रेटिक समझो स्क्वायर है, पावर 2 वाला, और इसमें क्यूबिक पावर 3 वाला। इसका मतलब हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी, 3 होगी। हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 3, ठीक। अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एग्जांपल ले लेते हैं लीनियर पॉलिनोमियल का। जैसे मैं ले लेता हूँ 4x - 2, 7x + 8। ये कौन किसका एग्जांपल है, लीनियर पॉलिनोमियल का। क्यों, क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 1 है। अगर मैं कह दूं 4x² + 7, क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल होगा, नहीं होगा। फटाक से तुम बोलोगे कि नहीं होगा, क्योंकि वेरिएबल की पावर मैक्सिमम 2 है, और जिसकी पावर मैक्सिमम 2 है वो आएगा अंडर द कैटेगरी ऑफ क्वाड्रेटिक, नॉट द लीनियर, ठीक है। तो जो क्वाड्रेटिक में होगा इसका एग्जांपल ले लो कुछ, लाइक 7x² - 3x + 2, लाइक 7x² + 15, क्लियर। हाँ, अब क्यूबिक में आ जाओ, जिसकी पावर मैक्सिमम 3 है, लाइक 3x³ + 4x² - 7x + 8, एंड नेक्स्ट ले लो 3x³ या 5x³ - 4x², या ले लेते हैं 18x³ - 7x + 8, ठीक। ये तीनों एग्जांपल। अब देखो ये चीज दिमाग में हमेशा नहीं रखना कि इसमें पावर 3 वाला भी होगा, पावर 2 वाला भी होगा, पावर 1 वाला भी होगा, कांस्टेंट जरूरी नहीं हर जगह होगा। बस जो भी पॉलिनोमियल है उसकी हाईएस्ट डिग्री केवल 3 होनी चाहिए, चाहे एक्स का टर्म गायब हो, उससे लेना देना नहीं है। लेकिन जो प्रेजेंट में है उसमें वेरिएबल की पावर मैक्सिमम मुझे 3 दिखना चाहिए क्वेश्चन में। अगर दिख रहा है इसका मतलब वो क्यूबिक की कैटेगरी में है। क्लियर है, नोट करो जरा। नेक्स्ट टॉपिक है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक। हमने डिग्री के बिहाफ पे देख लिया कितने टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं। अब जो अगला टॉपिक है दैट इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। क्या होता है, किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू लिखेंगे। इफ ए पॉलिनोमियल in form of p of x, in form of p of x, and k is any real number, and k is any real number, then the value after replacing by x to k is called the value of that polynomial. It is denoted by p of k also. क्या मतलब है, समझ आ रहा। कोई भी पॉलिनोमियल है वो किस फॉर्म में है, p ऑफ x के फॉर्म में है, और इसके अलावा k कोई रियल नंबर है और मुझे कहे कि वैल्यू बतानी है, तो मैं क्या करूंगा, x को रिप्लेस कर दूंगा k से, ठीक है। और जो वैल्यू आएगी वही उस पॉलिनोमियल की वैल्यू होगी, और उसको p ऑफ k से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। लाइक जैसे तुमको दे रखा है, देखो यहाँ पे एग्जांपल में इसी का देखते हैं। जैसे कोई p ऑफ x तुमको दे रखा है ax प्लस बी, सपोज दैट ये दे रखा है ax प्लस बी, और मुझे कहे कि इसकी वैल्यू निकालनी है, वैल्यू एट के पर वैल्यू निकालनी है। कुछ नहीं करना, x को रिप्लेस कर देना है सिंपली k से, और कुछ भी नहीं करना। यानी मैं लिखूंगा p ऑफ k इक्वल a ऑफ k प्लस b, यही इस पॉलिनोमियल की वैल्यू हो गई। समझ गए, और कुछ भी नहीं करना है, बस यही ही करना ही है। समझ रहे हो, समझ गए। अब जैसे तुमको दे दिया जाए, लाइक कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे तुमको दे दूं मैं p ऑफ x इक्वल 7x - 4, और इसकी वैल्यू बताओ एट x इक्वल 2, कुछ नहीं करना। जहां जहां x है वहां वहां उठा के 2 रख देना है, और कुछ भी नहीं करना। तो यहाँ पे सिंपली कर देंगे, पुट x इक्वल 2, सिंपल, और p ऑफ 2 इक्वल हो जाएगा 7 इंटू 2 माइनस 4, 7 इंटू 2 14 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 10। तो p ऑफ 2 कितना निकल के आया, 10। यानी जब हम x की जगह पे 2 रखेंगे
तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 10 होगी। यही तुम्हारा हो गया आंसर। बात समझ में आई? तो क्या हुआ? अच्छा, टेस्ट में। अच्छा हाँ, तो और क्या ही आएगा, यही सब नॉर्मल क्वेश्चन आएगा, और क्या आएगा। तो सिंपल है, बात समझ में आया। तो कुछ नहीं करना, जो भी वेरिएबल है उस पर वैल्यू पुट कर देना। नोट कर लो जरा, नोट करो, फिर जीरोज पर आते हैं। आर रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। चलो हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है जीरोज आर रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। वैल्यू निकालना हमने सीख लिया, अभी सीखेंगे जीरोज या रूट किसी पॉलिनोमियल की क्या होती है। बहुत सिंपल चीज है, जैसे तुमने वैल्यू निकाला वैसे ही इसको लिखेंगे। एट व्हिच वैल्यू ऑफ एक्स, एट व्हिच वैल्यू ऑफ वेरिएबल नंबर, वेरिएबल नंबर आर एक्स वाई जेड, लाइक at which value of variable number polynomial value, polynomial value will be zero, will be zero। अभी बताते हैं क्या मतलब है will be zero। that is the root are zeros of that polynomial। किसी भी पॉलिनोमियल में जो उसका वेरिएबल नंबर होगा, एक्स वाई जेड ए बी सी डी जो भी होगा, उसकी वैल्यू अगर मैं कुछ रखूंगा और पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए, तो वो हमारा कहलाएगा उस पॉलिनोमियल का रूट या जीरो। क्लियर हुआ बात? क्या मतलब है, क्वेश्चन से करते हैं, क्वेश्चन से समझ आएगा। जैसे अब तुमको एक क्वेश्चन दे दूं मैं, 4x-8, ये मैंने दे दिया तुमको, 4x-8 ये पॉलिनोमियल मैंने दे दिया, और मैं कहूं कि भाई इसके जीरोज बताओ, तुम इसके जीरोज या रूट बताओ। ठीक, तुम क्या करोगे, मैंने कहा कोई भी ऐसा वैल्यू जिस पर जो भी वेरिएबल नंबर है, अब जैसे इसमें x है, तो x की ऐसी क्या वैल्यू मैं पुट करूं जिससे इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू ही जीरो हो जाए, वही उसका रूट होगा। तो पहला तरीका क्या है, पहला तरीका तो यह है कि मैं ऐसे एक एक रख के चेक करूं, लाइक एट x इक्वल 1, तो मैं देखूंगा, लिखूंगा 4 × 1 - 8 दैट इक्वल -4। ठीक, फिर मैं रखूंगा एट x इक्वल 2, 4 × 2 - 8 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक, अब ये तो ऐसा क्वेश्चन है कि जो दो ही में आ गया, हो सकता है कई हो जो 4-5 लाइन चले जाए तब भी नहीं मिले, किस पे जीरो, समझ रहे? तो इसमें बेस्ट तरीका क्या है, बेस्ट तरीका सबसे बढ़िया ये है कि जो मैंने कहा कि x की कौन सी वैल्यू जिसपे इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए, तो हम मान लेंगे कि इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू ही जीरो है, यानी हम मान लेंगे कि p ऑफ x इक्वल जीरो है। p ऑफ x इक्वल कितना है, जीरो है, यानी 4x - 8 इक्वल जीरो है। x की वैल्यू आ जाएगी, आ जाएगी ना, बस हो गया सॉल्व। 4x इक्वल -8 इधर गया +8, x इक्वल 8/4 दैट इज इक्वल टू 2। x इक्वल कितना हुआ, तो ठीक है, और यही तो वैल्यू है जिस पर इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो रही है। वेरीफाई कर ले, इधर इधर मैं कर देता हूँ वेरीफाई। x इक्वल टू उठा के पुट कर दे रहा हूँ इक्वेशन में, ध्यान दो इधर, x इक्वल टू उठा के इसमें मैं पुट कर दूं अगर, तो 4x - 8 लिखा था, 4 × 2 - 8 दैट इज इक्वल टू 8 - 8 दैट इज इक्वल टू 0। आया, आया। मैंने क्या कहा था कि कोई भी ऐसा नंबर जिस पे पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए वही उसका रूट है। तो ऐसे सॉल्व कर लेना है कि पहले उसी पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर रख देना है। ठीक, सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल देंगे और यहां लिखेंगे दैट मीन्स 2 is the zero of polynomial 4x - 8। क्लियर हुआ बात, नोट कर लो। ठीक, एक पॉइंट और यहाँ पे साइड में मैं बता दे रहा हूँ, उसको अभी लिख लेना। ठीक है, अब देखो जो तुमने पढ़ा है, ध्यान दो इधर, जो तुमने पढ़ा है अभी कुछ देर पहले, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल क्या पढ़ा था, लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा था, और क्या पढ़ा था, क्यूबिक पॉलिनोमियल, 3 पढ़े थे ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सीधे नंबर ऑफ जीरोज, ये आगे बहुत काम आएगा, और लेक्चर आज का यहीं फिनिश करेंगे। नंबर ऑफ जीरोज, पहला लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल का कोई अगर तुमको एग्जांपल दिख जाए। दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और तीसरा क्यूबिक पॉलिनोमियल।
क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, यानी टोटल जीरोज, टोटल रूट कितने होंगे। तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि जब भी लीनियर की बात करेगा, लीनियर में मैंने क्या कहा, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, व्हिच पॉलिनोमियल दैट इज द मैक्सिमम डिग्री इज 1, दैट इज द मैक्सिमम डिग्री इज 1, जिसकी मैक्सिमम डिग्री 1 है वही लीनियर पॉलिनोमियल है। तो जीरो में भी यही ध्यान रखना कि जिसमें मैक्सिमम 0 1 है वही लीनियर पॉलिनोमियल है। मतलब कि लीनियर पॉलिनोमियल का मैक्स जीरो या मैक्स जीरो आर रूट वो कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। और सेम क्वाड्रेटिक में अभी मैंने क्या सिखाया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है वो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अगर रूट कहेगा तो मैं लिख दूंगा कि नंबर ऑफ रूट मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। ठीक, अब वो 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, लेकिन मैक्स टू मैक्स 2 ही होगा, 3 नहीं होगा। क्लियर है, इसका आगे काम आएगा, कहाँ काम आएगा मैं बताऊंगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसमें लिखना नंबर ऑफ रूट मैक्सिमम कितने होंगे, 3 होंगे, क्योंकि इसकी पावर मैक्सिमम 3 होती है। मैक्सिमम हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 3 होती है। तो जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा उसके नंबर ऑफ जीरोज मैक्स टू मैक्स 3 होंगे। वो 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं। क्लियर है, सारी चीजें क्लियर है। कल हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरोज, जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरोज, वो इसी से आगे कंसीडर करना है। ठीक है, तो मैंने पहले बता दिया, ये चीज ध्यान रखना। बाकी कल जीरोज कैसे निकालते हैं, कैसे ग्राफ को देखना है और कैसे हम वेरीफाई करेंगे वो हम कल देखेंगे। ठीक है।